کا کلام ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے یا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کیا فرماتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ کلیسیا۔ موجودہ دور میں ہم سب بہن بھائی جو ہیں شاید سمجھتے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ چرچ کیا ہے؟ مسیح کے چنیدہ پارٹی، مسیح کے اور کوئی بھائی بہن؟ ہم لوگ چرچ ہیں سب، ہم چرچ ہے اور ہم سب چرچ ہیں۔ آمین۔ اوکے، یہ بہت بائبل قدس میں اہم سچائی ہے۔ ایکچولی اس سے پہلے میں تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی صدی سے لے کر چھٹی صدی تک یہ اسکولوں کا دور گزرا ہے۔ اس کے بعد چھٹی صدی میں یہ رومن کیتھولک کلیسیا جو ہے یہ بلڈ اپ ہوئی۔ اس کے بعد 16ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں 1000 سال کا دور جو ہے یہ رومن کیتھولک کلیسیا کا گزرا۔ لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل قدس عام ایمانداروں پر یہ بند کر دی گئی تھی۔ کوئی بھی ہماری طرح عام شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بائبل کو پڑھ سکتا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ سوائے فادر کے، پوپ کے یا وہ جو عہدیدار لوگ تھے ان کے علاوہ کوئی بھی بائبل قدس کی تشریح کر سکتا یا دوسروں کو جا کر کلام سنا سکتا۔ اس دور کو تاریخ میں ڈارک ایجز یعنی تاریکی کا دور کہتے ہیں، اور یہ 1000 سال یہ تاریخ میں تاریکی کا دور گزرا ہے۔ اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام جو بائبل سے ہٹ کر کے وہ کلیسیا میں شامل ہوئے، اور ایون کہ لوگ اتنی بنیادی سچائی کی کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں وہ نجات سے بھی وہ غافل یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے نجات لے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک سسٹم جو ہے وہ ریز اپ ہوا کہ پیسوں کے وسیلہ سے لوگ جو ہے نجات لینا شروع ہوئے، اور ایک باکس رکھا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے زیادہ آواز آئے گی اتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ ساری باتیں ہسٹری میں درج ہیں۔ اگر آپ رسولوں کے نقشے قدم یہ بک ہے اس کو پڑھیں تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو تھے ایک باکس رکھتے، کوئی بھی گناہ کرتا، غلطی کرتا، اسے کہتے ہو کہ کتنے پیسے ہیں ادا کریں، آپ کو کوئی حکومت والا نہیں پوچھے گا، اور وہ اسے مغفرت نامہ یا معافی نامہ کرتے تھے اور وہ اس کو دے دیا جاتا۔ پھر اس طریقے کے دور میں خدا نے ایک شخص کو کھڑا کیا، خدا نے ایک شخص کو برپا کیا جو سچائی پر کھڑا ہوا، جس نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کا نام مارٹن لوتھر ہے۔ مارٹن لوتھر نے 99 پوائنٹ لکھ کر وہ کیتھولک کی چرچ بلڈنگ پر لگائے۔ اس نے کہا یہ بائبل قدس میں کہاں سے آ گیا جو آپ نے خود سے ان کو رکھ لیا ہے؟ اگر یہ بائبل میں ہے تو اوکے میں فالو کروں گا، اگر نہیں ہے تو مجھے ثابت کریں۔ پھر اس کے ساتھ بہت انتہائی برا سلوک ہوا، اور اس نے جو ہے وہ اس کے پوسٹر جگہ جگہ شہر میں لگے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنی آواز کو واپس لے لیں۔ لیکن اس نے کہا اگر مجھے بائبل کی خاطر مرنا ہے تو میں تیار ہوں، سچائی سے کبھی نہیں پھروں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی دور ہے، ایون کہ بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی بنیادی سچائی چرچ کیا ہے، بہت سارے بہن بھائی اس بارے میں واقف نہیں ہیں۔ اوکے، اگر پتا ہے چرچ یہ بلڈنگ نہیں ہے پھر اکارڈنگ ٹو بائبل کون سی کلیسیا ٹھیک ہے؟ آج بہت سارے چرچز ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ سب کہیں گے ہم بائبل کے مطابق ہیں، لیکن کون سی کلیسیا واقعی بائبل کے مطابق ہے؟ ہمیں کہاں عبادت کرنی چاہیے؟ مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب کو ضرور ہے کہ ہم عبادت کریں، ایسا ہی ہے؟ آمین۔ لیکن کون سی کلیسیا اکارڈنگ ٹو بائبل ہے جس کے ساتھ ہم مل کر عبادت کریں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ آمین۔ اوکے، سب سے پہلے کلیسیا یا چرچ ایک بلڈنگ نہیں ہے۔ آمین۔ کلیسیا یہ ایک بتائی ہوئی جماعت ہے۔ متی 16 باب اس کی 18 میں خداوند نے پترس سے کہا
इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। खुदावंद ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का जो लफ्ज़ी मतलब है वो बुलाए हुओं की जमात है। आमीन। खुदावंद यीशु, कलीसिया का मतलब बुलाए हुओं की जमात है। कलीसिया मसीह का बदन है। यफियों 1:23 में लिखा है, ये उसी का बदन, उसी की मामूरी है जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। कलीसिया क्या है? कलीसिया बुलाए हुओं की जमात है। कलीसिया मसीह का बदन है। ओके, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। हम सब कलीसिया मसीह की दुल्हन है। ओके, हम सब जिंदा हैं। अगर हमें कोई कहे ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, इसमें पंखे हैं, लाइट्स हैं, इसकी बहुत अच्छी खिड़कियां हैं, इसमें बहुत अच्छा मार्बल है, आप इससे शादी करते हैं, हम कर सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम जिंदा हैं। राइट? हम एक गैर जानदार चीज से शादी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मसीह जिंदा है, उसको भी एक जिंदा हस्ती की जरूरत है। इसलिए वो एक फिजिकल या मादी इमारत को उसे नहीं चाहिए है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, दुल्हन को जरूर जिंदा होना चाहिए। हमें खुदावंद यीशु, ये खुदा का घर है। गलत मत्ती 3:15 इसमें लिखा है, ये खुदा का जिंदा घर है। आमीन। ओके, फिर कलीसिया एक नया इंसान है। ये वो नया इंसान है जो खुदा की ताकत लड़ेगा और इस खुदा के दुश्मन को शिकस्त देगा। आमीन। खुदावंद यीशु, और ये नया इंसान इसकी 2:14 से 15 इसमें ये लिखा है। खुदावंद यीशु, ओके, हम देखते हैं। ओके, ये हवाला हम सब मिलकर पढ़े, इसकी 2:14 से 15 में। यहाँ लिखा है, सब मिलकर, अगर किसी को मिला है, क्योंकि बड़ी हमारी सुलह है जिसने दोनों का एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने हाथ में एक नया इंसान पैदा करके सुलह कराए। एक नया इंसान पैदा करके सुलह कराए। आमीन। ये नया इंसान कलीसिया है। आमीन। जो मसीह से पैदा हुई है, मसीह ने से खुद इसकी बुनियाद रखी है। आमीन। ये तो इसलिए हमें जरूर पता होना चाहिए, कलीसिया चर्च कोई इबादत नहीं है। चर्च बुलाई हुओं की जमात है। चर्च खुदा मसीह का बदन है। चर्च मसीह की दुल्हन है। चर्च खुदा का घर है। चर्च नया इंसान है। ओके, हम देखते हैं, अगर ये सारी बातें हम देखते हैं, दूसरे बहन भाई भी कहें, ओके ठीक है, फिर कलीसिया को और ज्यादा हमें कैसे वाज़ह हो सकता है कि कलीसिया के बारे में और क्या जानने की जरूरत है। एक्चुअली कलीसिया अकॉर्डिंग टू बाइबल एक शहर में एक कलीसिया है। आमीन। हम देखते हैं हमारे 8 में लिखा है यरूशलेम में कलीसिया। फिर हमारी पूरी बुक में हम देखते हैं इंसाकिया में कलीसिया, गलतिया में कलीसिया, इफ्सुस में कलीसिया। ये सारे शहरों के नाम हैं। कलीसिया का कोई खास नाम नहीं है। कोई भी आज जितने हम नाम देते हैं, ये बाइबल के दर्ज के मुताबिक ये बाइबल में कोई ऐसा नाम कलीसिया का दर्ज नहीं है। बाइबल में कलीसिया का नाम शहर के मुताबिक एक शहर में एक कलीसिया है। अगर हम पिंडी में रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी में कलीसिया, इस्लामाबाद में है इस्लामाबाद में कलीसिया, इसका कोई खास नाम नहीं है। आमीन। और ये बाइबल का जो अगर हम खास नाम रखते हैं, एक्चुअली हम कलीसिया में तकसीम कर रहे हैं। अगर हम कोई खास नाम से कलीसिया को मुंसलिक कर देते हैं, वो एक तस्कीके की हम बुनियाद रख रहे हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू बाइबल कलीसिया का कोई नाम नहीं है। अगर हम बाइबल का दिस पढ़ें तो बाइबल में सिर्फ एक शहर में एक कलीसिया। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया की बुनियाद क्या है। एक्चुअली कलीसिया की बुनियाद जुगानगत पर मबनी है। कलीसिया की बुनियाद जुगानगत पर रखी गई है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि यरूशलेम में सिर्फ एक हैकल थी। और सारे यहूदी बेशक जहाँ कहीं भी वो रहते थे, साल में 3 मरतबा उस शहर में आकर हैकल में खुदावंद की हजूरी में इबादत करते थे।
क्यों सिर्फ एक हैकल थी? क्योंकि यगानगत को कायम रखना था। आमीन। अगर हैकल हर शहर में एक हैकल होती, हर आगे पीछे कोई गली में एक हर किसी की हैकल होती, तो असली इसराइल के दरमियान यगानगत कायम नहीं रह सकती। हर कोई कहता मैं ठीक हूँ, ये ठीक नहीं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। असली क्यों एक हैकल थी? ताकि खुदा के लोगों के दरमियान यगानगत को कायम रखा। क्यों एक शहर में एक कलीसिया है? ताकि सारे मुकद्दसीन के दरमियान यगानगत कायम रहे। आज हमें यगानगत के मुकाम पर वापस आने की जरूरत है। आज हमें जरूर खुदा के कलाम को फॉलो करने की जरूरत है, जरूर खुदा के कलाम की तरफ रुजू करने की जरूरत है। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि आज हम भी मार्टिन लूथर हैं। हमें खुदा ने हम पर सच्चाई को खोला है। आज हम भी सच्चाई से वाकिफ हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल कलीसिया का कोई नाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल एक शहर में सिर्फ एक कलीसिया है। हमें ये यगानगत का मुकाम है। अगर हम इससे हटकर और तरह की प्रार्थना करते हैं, एक्चुअली वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। आमीन। फिर हम यगानगत के मुकाम पर नहीं हैं। फिर हमारे दरमियान तो फिरके भी होंगे, फिर हमारे दरमियान मुख्तलिफ राय होंगी, फिर हमारे दरमियान झगड़े भी होंगे। ब्लूस कहता है ग्रंथियों के साथ में, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है मैं अबलूस का हूँ, कोई कहता है मैं पलूस का हूँ। क्या मुसीबत क्या है? आज भी मौजूदा सूरत हाल के आती ही नहीं है। कोई कहता है मैं फलान हूँ, कोई कहता है मैं फलान हूँ, कोई कहता है मैं फलान हूँ। इसलिए हमें जरूर बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। हमें जरूर बाइबल को मानने की जरूरत है। हमें जरूर बाइबल का साथ देने की जरूरत है। हमें भी कहने की जरूरत है, चाहे सच्चाई की खातिर हम मर जाएं, हम तैयार हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये लिखा है, ये सच है। हमें अगर हम जानते हुए भी इसकी पैरवी नहीं करते हैं, एक्चुअली ये हमारा मसला है, बाइबल का मसला नहीं है। आमीन। कलाम बहुत वाजिया है, सबके लिए वाजिया है, नहीं है। एक्चुअली मुकालफा में हम मजीद पढ़ें, पहले बात की उसकी 11-12 आयत पढ़ें, वहाँ पर खुदावंद यूहन्ना को कहता है तू 7 कलीसियाओं को लिख दे, और नीचे 7 शहरों के नाम है, इज्जत है, आगे वो शहरों के नाम है। जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर शहरों के नाम दर्ज है, किसी शख्स का या किसी और किसी का भी नाम दर्ज नहीं है। इससे क्या जाहिर होता है? कलीसिया का कोई नाम नहीं है। ये शहर के नाम से इसे मुंसलिक किया जाता है। एक शहर में एक कलीसिया, इसलिए कलीसिया कोई मादी इमारत नहीं है। कलीसिया क्या है? बजाय रूह की जमात है। कलीसिया मसीह का बदन है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। कलीसिया खुदा का घर है। कलीसिया नया इंसान है। हालेलुया। हम सब कलीसिया हैं, सब बुलाए हुए जमात हैं। और यहाँ पर किसी चाइनीज भाई ने आपको नहीं बुलाया है, बल्कि आप सब खुदा से बुलाए गए हैं।